हेलो, आवाज़ आ रही है? यस, आ रही है सर आवाज आपकी। हाँ हाँ। So, हेलो मैडम। हेलो सर। या हाय। तो गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। या तो आज का टेंटेटिव लास्ट सेशन रहेगा। और आपने जो कुछ पॉइंट्स दिए ना मैडम लास्ट कल यस्टरडे, हाँ सर। उसमें से जो क्लियर होते हैं आज क्लियर करेंगे। और एक दो पॉइंट्स कोई बचते हैं तो इन द मीन टाइम वी विल वर्क आउट इट एंड देन वी विल अरेंज वन एडिशनल सेशन। ओके सर, नो प्रॉब्लम। है ना? यस सर, श्योर। हाँ तो बाकी तो कुछ ये नहीं है, बाकी सब स्मूथ हो गया। यस सर, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कंप्लीटेड। या तो आज का ख़त्म होने तक शायद मैं रहूँगा। कितने बजे चले, कितने 5 वाजेपर्यंत चालू. इन केस मैं नहीं रहा तो भी जो बचता है वो आगे कंटिन्यू करेंगे मैडम एक आधा। Sure, sir. Yes. Thank you so much, sir. All the sessions were really good, and we were doubtful when we started how far we'll be able to grab the things. But yesterday we really felt that it's doable at our end, and it was really in a crisp and clear manner. It was conducted the course. Yeah. And Yes. So really, thank you, sir. no, it's all right because we are going for MOU. So Yes, on sir. the basis of MOU, we are expecting more experience, field experience. Yes, sir. Sure. From that is for both the sides. We Yes, are sir. interested in work on the field applications. Yeah, Whatever field the- application and beneficial for the farmers as Yeah. well as for researchers. That's Yeah, the aim of so our MOU also. Yeah. new budding researchers will get idea what can be done, what they can do for the farmers, or Yes, what sir. new thing can be initialized Yes, with sir. the collaboration of our university and your this micro. Yes. Yeah. Yes, sir. So we will definitely try to explore more and more whatever is Yes, possible. sir. Yeah, sure, sir. So, Yeah. so let's start. We are cover up today points. So today we are cover here the image classification part. So I am sharing my screen. Today we are cover the day 7 online training program session in QGIS practical with as well as theoretical session. So I am presenter Jaipal Singh Kaite and with my colleagues and my mentor R.R. Deshmukh sir and Rohit Gupta also present here in Department of Computer Science and IT in Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University. So today's our agenda is a theory plus practical hands-on on the classifications and in between having the I am mentioning here the supervised and unsupervised classification. One more classification also add in this object classification. Then we cover up the I think I'll try to cover up this what is the GPS data, GPS plugin, live GPS tracking, global project specifications, coordination capture. Already our cover this coordination capture plugin point. Then also our cover the geometric checker plugin. So I'll be once again explain these 2 points also. And last point is the satellite data transform using these Gaussian methods. So I try to cover up these all points. It is too much use practical. Exactly, we are focusing image classification or classification. It is having the 3 different types of classification: supervised, unsupervised. Actually, image classification is the process to assign land cover to the pixel. For example, classes including the water, urban, forest, agriculture, and grassland, and another barren land also including in that. So this image we can see exactly how classified we will see in the practical.
But what exactly classification are work? To my colleague Rohit Gupta are explaining some short of theoretical part. So I request Rohit, you can carry on your session. Yes. Hello everyone. Am I audible to all? Yes, Okay. So the topic is classification. When we are saying about the classification, it is nothing but the made data in a group wise. So when we are saying the classification, it's basically having two types. One is the supervised classification and another one is the unsupervised classification. And this part, when we think on the satellite images, so the satellite image is Yes. it's a combination of various bands, and when we say the satellite image, it having the lots of things, lots of objects are available in that. So when we are saying supervised learning, so in a supervised learning, in this we have to train our algorithm that what things is there. For example, in the image you can see there are various colors like cyan, yellow, red color, blue color also. When I say the blue color is a water, and when I say the red color is a vegetation, so that time I have to tell these things to the system that the red color is a vegetation and blue color is a water. So by using this technique, we can use supervised learning technique. In that, we are training our system that whatever I am telling you, these things are means like just I said the blue color is water and the red color is the vegetations. Likewise, we have to give these values to our algorithm in a pixel format, or we can use our geometrical tools like a circle, or by using a rectangle. We just choose the pixels from the images or a part of the image and give it to our algorithm and said this things is a blue color is water, red color is vegetation, etc. Likewise, when we are saying about the unsupervised learning, in unsupervised learning there is no need to give any information to the system that this is blue color is water or like red color is vegetation. By using unsupervised algorithms, the system classified itself the objects according to the band or according to the color of the image. It will assume that the red color is another, means the red color is suppose vegetation, blue color is water, cyan color is a barren land. Likewise, these unsupervised algorithms in a QGIS, there are various algorithms are available in unsupervised category and in a supervised category. So the main thing is that in supervised we have to train the system, and in unsupervised there is no need to train the system. The system adopt itself that the according to the color or band number, it will classify itself to the objects. Hello. Huh? Yes. So any question you can ask, or the algorithm types my colleague Jaypal sir will cover. Thank you, Rohit Gupta. You are explore almost all of classification types and how the classification are exactly working, supervised, unsupervised, and it is very good to we understand the classification parts. So we start here the QGIS applications, and you already hope so you already extract your USGS data for today. We use that practical session. It is required to the select programmer or select the system to a particular object or bodies, a particular property need to the select classification training site we want required to spectral signature property. So we are try to cover up the training area, create the spectral signature and classify that how to combine all these process in classification. So let's start. We can do the practical on that. So you can see here semi-automatic classification plugin. You open that. So we start your fresh environment. Open your automatic classification plugin points. Select your band. You can hear me clearly?
आवाज़ आ रहा है आपको? यस, आ रहा है। हाँ ओके, तो लास्ट अभी डे 7 का जो हमने डेटा दिया है आपको, यूएस क्लिप डेटा, उसे यस, ओपन करना है, सेलेक्ट ऑल बोलना है, और ये मेटा डेटा और एन जी फाइल है, इसे सेलेक्ट नहीं करना है, ओपन इट। ओके, सो यहाँ पर क्या है कि हमारे सभी बैंड आ चुके हैं, तो वी आर इंपोर्टिंग ऑल बैंड्स आर रिक्वायर्ड. So now next process is to exactly how the classification are happening with this data. So we need to SCP duck, right click on the, ये ऐसा आपके स्क्रीन पे आएगा या SCP duck, ठीक है ओके. यहाँ पर आपको लैंड सेट का ये दिखेगा ऑप्शन. तो लैंड सेट में हमें क्या करना है कि डायरेक्टरी सेलेक्ट करना है जहाँ से हमने क्लिप डेटा दिया है. तो वी आर सेलेक्टिंग दैट क्लिप डेटा. ओके सेलेक्ट. यहाँ पर आपका इंफॉर्मेशन आ जाएगा पूरा. यहाँ पर आपको एक फ़ाइल लेना है MTL का फाइल लेने के बाद, एक्चुअली ये मैंने आपको इंक्लूडिंग दिया है, अगर नहीं आपको दिया गया होता तो ये फाइल इंफॉर्मेशन नहीं आता है यहाँ पे. रेडियंस ऐड, रिफ्लेक्टेंस, मल्टी रिफ्लेक्टेंस ऐड, ऑल इंफॉर्मेशन कम बाय द MTL फाइल. तो इसमें हमारे जो स्पेक्ट्रल बैंड है, जैसे बैंड नंबर 1 यहाँ पर दिखेगा आपको, बैंड नंबर 1, तो इसका जितना भी प्रॉपर्टी है एग्जैक्टली उसका एड्रेस, लोकेशंस, उसकी रिफ्लेक्टेंस वैल्यू, रेडियंस मैक्सिमम, जो भी उसका इंफॉर्मेशन होगा इन स्टैटिस्टिकल फॉर्मेट, तो यहाँ पर आएगा. बट वो सभी इंफॉर्मेशन कहाँ है? आपके MTL फाइल में. ठीक है ओके. सो देन ये आने के बाद आपको क्या करना है कि इसको आगे नेक्स्ट रन बोलना है. जैसे ही रन बोलोगे आप, याद रखो आपको यहाँ पे रन बोलने के बाद वो पूछेगा आपको क्या यू वांट टू सेव दिस डेटा. तो यस वी कैन सेव दैट. हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे यहाँ जिसका नाम होगा रिफ्लेक्टेंस एंड ब्राइटनेस. रिफ्लेक्टेंस एंड ब्राइटनेस इसको सेलेक्ट करेंगे. तो जो भी हमने लैंडसेट डेटा का रिफ्लेक्टेंस एंड ब्राइटनेस का डेटा लिया है, तो उसमें क्या है हमारा MTL फाइल का जो भी डेटा आया है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको रेडियंस मल्टी, रेडियंस ऐड, रेडियंस मल्टी, तो ये सभी डेटा आपका जो हम आप क्लिप फाइल क्रिएट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर रन ऑप्शन बोलने के बाद उसने पूछा है कि यू कैन सेव दिस डेटा. सो वी कैन सेव दैट. उसके बाद हमने एक ऑप्शन नहीं लिया है यहाँ पे, या लेना चाहिए था, अप्लाई द DOS1 एटमॉस्फेरिक करेक्शन. इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड दिस डेटा बिकॉज दिस डेटा इज़ ऑलरेडी एटमॉस्फेरिक करेक्टेड. सपोज नहीं है आपका डेटा एटमॉस्फेरिक करेक्टेड, तो देन यू कैन अप्लाई दिस. ओके. बट सर, हाउ वी नो दैट द करेक्शन ऑलरेडी अप्लाई हुआ है? हाँ करेक्ट. या जिस एजेंसी से आप डेटा ले रहे हो, दे आर ऑलरेडी टोल्ड यू दिस डेटा इज एटमॉस्फेरिक करेक्टेड और नॉट करेक्टेड. सो वी वाज डाउनलोडिंग बाय द ग्लोबीज और USGS डेटा agency. So they are already mentioning on that there this data is atmospheric corrected. Already they are having number of data available. तो उसके अंदर लिखा होता है कि एटमॉस्फेरिक करेक्टेड नहीं है. यू कैन अप्लाई ऑन दैट एटमॉस्फेरिक करेक्शन मेथड. वो हमारे पास उतना टाइम नहीं है, तो वो डेटा भी डाउनलोड करके आपको दिखाया होता है कि हाउ द रिजल्ट एग्जैक्टली कम. ओके थैंक यू. जस्ट क्लोज इट. इसे क्लोज कर देंगे. यहाँ पर दिख के आएगा आपको कि जो हमारा पहला क्लिप डेटा था वो यहाँ है, ऊपर बैंड्स बने हैं. हाँ ये बैंड्स डेटा है. ठीक है. ये रिफ्लेक्टेंस वैल्यू जो MTL फाइल के अंदर आई है, वो सभी वैल्यू इसके अंदर मेंशन है अभी. तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे अब क्लिप डेटा को.
इसको अनचेक भी करके रखा तो चलेगा, नॉट रिक्वायर्ड टू हियर. ओके. हाँ, यहाँ तक आप प्रैक्टिकल करो अभी. ओके. हेलो. Yes, sir, we'll try. हाँ, you try and if there is any problem, share your screen. Yes, sure. तो इसको हम इधर एक इसमें ऐड कर देंगे. अब हम क्या करेंगे, एक वर्चुअल बैंड क्रिएट कर देंगे. ठीक है. Yeah. ये आरजीबी बैंड है ना, वी कैन क्रिएट दैट आरजीबी बैंड. ये वर्चुअल बैंड इसलिए क्रिएट किया हमने, क्या हमें जो भी सिग्नेचर वैल्यू क्रिएट करना है अभी, तो हम इसके बेस के ऊपर ही सिग्नेचर वैल्यू डेवलप करेंगे. सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग वर्चुअल बैंड. एज अ बेस सुपरवाइज क्लासिफिकेशन में क्या होता है, क्या वी नो एवरीथिंग अबाउट दैट ग्राउंड ट्रूथ वेरिफिकेशन. हम वहाँ जाते, वहाँ का डेटा लेते, जस्ट कलेक्ट द सैम्पल ऑन ग्राउंड प्लेस and track the GPS location also. So that's why we are using the virtual band for here, because we don't know what is the condition there. So their crop or not, it means which types of objects are available there. So उसके लिए हम क्या करते हैं, एज अ बेस मैप और एज अ रेफरेंस वर्चुअल बैंड का यूज़ करते हैं. तो अभी हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग इनपुट दिख रहा है आपको यहाँ पे, एक सेकंड ऑप्शन आएगा, इट इज़ अ ट्रेनिंग इनपुट. ठीक है. इसके अंदर एक ऑप्शन है, और एक ऑप्शन है क्लासिफिकेशंस. वो हम आगे देखेंगे कैसे है. सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रेनिंग इनपुट पे फोकस करेंगे. अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि एक स्पेक्ट्रल सिग्नेचर क्रिएट करना है. जैसे रीजन ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे यहाँ क्रॉप का टाइप है, वाटर बॉडीज़ है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, इट इज़ वाटर बॉडीज. टू क्रिएट हियर सेकंड ऑप्शंस. तो ये पूछेगा आपको क्या, दैट ओपन दैट क्रिएट द स्पेक्ट्रल सिग्नेचर फाइल. तो एक लोकेशन देना है इसको. जैसे अब डे 7 का चल रहा है प्रैक्टिकल, तो वी आर क्रिएट हियर द वन फोल्डर. स्पेक्ट्रल सिग्नेचर और रेफरेंस वैल्यू भी बोल सकते हैं आप उसको. स्पेक्ट्रल डेटा. ठीक है. यहाँ पर आपका स्पेक्ट्रल डेटा का रेफरेंस ये आ जाएगा. तो हम क्या करेंगे, इसको टॉप में ले लेंगे. यहाँ पे राइट हैंड साइड ये जो दिख रहा है आपको,
यानी जब भी हम स्पेक्ट्रल डेटा क्रिएट करेंगे तो आपको दिख क्या है, क्लासिफिकेशन। एससीपी डक को ओपन करना है, उसके अंदर ऑप्शन है ट्रेनिंग इनपुट। हाँ अभी दिखेगा, दिखेगा स्क्रीन दिखेगा, वो नेटवर्क का इशू आ गया था। ओके ओके। ओके यहाँ तक आए नहीं, इनपुट ट्रेनिंग। एक मिनट सर। हेलो। जब हाँ बोलो। एसटीपी डॉक में गए उसके बाद कहाँ पे क्लिक करना है? एससीपी डॉक में क्लिक करने के बाद ये देखो मैं ऑप्शन क्रिएट करता हूँ, इनपुट ट्रेनिंग डेटा दिख रहा है आपको ये। यस। उसके बाद ऑप्शन आएगा आपको ये सेकंड ऑप्शन, ये यहाँ पर क्रिएट द फोल्डर स्पेक्ट्रल राइट। सिग्नेचर। ओके ओके। तो ये डॉट ठीक, एसटीपी फाइल्स है ना? हाँ डॉट एससीपी। हाँ तो बराबर है। ओके ओके। राइट राइट, गॉट इट। ओके। या फिर अब ये क्रिएट करने के बाद हमको क्या है कि वी वांट टू क्रिएट हियर द स्पेक्ट्रल सिग्नेचर। अब आपको बॉटम में दिख के आएगा यहाँ पे क्या, एम सी आई डी और एम सी इंफॉर्मेशन। तो इसका एक्चुअल मीनिंग होता है माइक्रो क्लास और क्लास। C1 सी आई डी जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, इट इज़ अ माइक्रो क्लास एंड क्लास इंफॉर्मेशंस। अब माइक्रो क्लास क्या होता है क्या, जस्ट लाइक ए वाटर बॉडीज, बट नंबर ऑफ वाटर बॉडीज लेक। आप अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ क्या है, शेततला जिसे कहा जाता है, स्मॉल वाटर कैनल, वाटर टैंक। तो उसको अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे अभी इसी फिगर में भी देखेंगे हम, तो आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं एक। जैसे यहाँ माइक्रो क्लास में दे देंगे हम वाटर, और यहाँ जैसे बिग वाटर बॉडी। ठीक है, अभी सी आई डी ऐसे अब नंबर ऑफ आईडीज रहेगा, तो इसको यहाँ पर दो ऑप्शन दिख के आएंगे आपको, ऑटो सेव और सिग्नेचर। तो दोनों ऑटो ही रखना है, क्योंकि जो भी हम इसके ऊपर एक्शन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट खुद को सेव करते रहेगा। ठीक है। सो अभी ऑप्शन होने के बाद क्या है, हमको यहाँ पर वाटर बॉडीज़ को मार्क करना है। तो वी आर यूजिंग हियर द रीजन ऑफ इंटरेस्ट। ये ROI दिख रहा है आपको, ये सभी है ना सेमी ऑटोमेटिक क्लासिफिकेशन के टूल बार के पार्ट है। मैं इसे बाहर ले लेता हूँ तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। उसको अभी डेजिग्नेट करेंगे ये वाटर है करके। अब इसे सेलेक्ट करके यू कैन जस्ट क्रिएट योर आइडेंटिफिकेशन ऑब्जेक्ट, क्रिएट द स्पेक्ट्रल सिग्नेचर। ठीक है, इट इज़ क्रिएट। फिर इसे क्रिएट होने के बाद आपको क्या करना है कि यू कैन सेव दिस, बट अब नंबर ऑफ वाटर बॉडीज़ है तो वो नहीं हो रही, तो हमें एक एक वाटर बॉडीज़ को उसका एक इंडिविजुअल नाम देना है। जैसे सेव यहाँ पर जैसे माइक्रो क्लास जो है उसके अंडर में आएगा क्लास, माइक्रो क्लास में क्लास का इंफॉर्मेशन क्या है, तो यहाँ बिग वाटर बॉडीज़ हमने दे दिया है इसका नाम सेव। ओके। अभी वो सेव होने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा आपको, ये देखो ये सेव दिख रहा है। अभी और एक वाटर बॉडीज़ को क्लासीफाइड करेंगे हम। जैसे हमें यहाँ पर जो ऑप्शन है रीजन ऑफ इंटरेस्ट का, इससे हटा के हमको अगर स्क्रीन इधर उधर मूव आउट कराना है तो यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर में पैन मैप का एक ऑप्शन है जिससे हैंड जैसा दिख रहा है आपको, वो सेलेक्ट करके आप मूव आउट करा सकते हो इधर उधर।
सेकंड इसमें वाटर बॉडी सेम है बट माइक्रो क्लास भी एक ही रहेगा बट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है कि 2 सो इट इज़ ए करेक्ट। यहाँ पर इसको हमें क्या करना है कि 1 ही देना है क्योंकि ये हमारा एक ही आईडी रहेगा, हम इसको नंबर ऑफ आईडी नहीं दे रहे क्योंकि नेक्स्ट आएगा क्रॉप, उसके बाद आएगा फॉरेस्ट, फिर बेयर लैंड, तो ये एक ही माइक्रो आईडी का पार्ट है, इसलिए यहाँ पर रिपीट द आईडी आपको एक ही देना है। और यहाँ स्मॉल वाटर बॉडी बॉडी 1, इसके एक टेम्पररी नाम दे देंगे। वी डोंट नो द प्लेस नेम सो दैट्स व्हाई वी गिव द एक रैंडम नेम। अब ये रैंडम नेम लेने के बाद हमें और इसको इसी तरह शेप फाइल क्रिएट कर लेना है। ये क्या करेगा, सिग्नेचर वैल्यू आपका जो पिक्सल का स्पेक्ट्रल सिग्नेचर रहेगा उस पिक्सल में कौन से टाइप की कंटेंट अवेलेबल है उसके हिसाब से पिक्सल टू पिक्सल मैच क्लासिफिकेशन का यूज़ होगा इसमें। सो वी कॉल दैट इमेज क्लासिफिकेशन। ओके, ये एक वाटर बॉडीज है, वी कैन सेव इट। हमारे लिए अभी क्या करना है आपको कि जिस तरह मैंने अभी दो ऑब्जेक्ट के स्पेक्ट्रल सिग्नेचर क्रिएट किया है, जैसे वाटर बॉडीज हमने लिया है यहाँ पे, तो आपने भी करना है और मुझे स्क्रीन दिखाना है सब में। ओके ओके हाँ, और फिर हम उसके आगे जाएंगे क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन ही हो जाएगा अगर मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा। राइट। QGIS के प्रॉब्लम है क्या ये? वापिस एरर आया देखो यहाँ पे। वो डिलीट करो एक बार, वर्चुअल बैंड डिलीट कर दो। ये सही है, उसने क्या करा है कि रिफ्लेक्टेंस का ही डेटा उठा लिया जो फ्रंट में उसको मिला। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब हम क्लिप डेटा ऐड कर रहे हैं ना तभी एक वर्चुअल बैंड क्रिएट करना चाहिए हमें। शायद मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ होना चाहिए था। ठीक है, फिर इंटर करो उसमें। ओके, सेलेक्ट ए करने का उसको और फिर इंटर करने का। ओके। अब ये काम करो, ये जो दिख रहा है कि ऊपर के, इनको सब कुछ ऐसे माउस से सेलेक्ट करके नीचे ले लो सबके। जो आरटी वाले हैं जो भी क्या? हाँ, लास्ट में क्लिक करो ना उनको, लास्ट से है ना, सीधा माउस से आप सीधा सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नहीं, लास्ट। ठीक है, कोलैप्स करो आखिर। सही है ना? उठाओ उसको, नीचे डाल दो उसको, ड्रैग एंड ड्रॉप करो आखिरी में। अब सही है। हाँ, अभी अब बनाओ बोला। अभी तो बन गया है। अभी तो आना ही चाहिए उसको। नहीं आया तो QGIS अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो भी अब एक काम करो भाई, आप स्टार्टिंग में वर्चुअल बैंड बना देख, मैं वही बोल रहा था। ये देखो, ये कभी प्रॉब्लम फेस ओके, नहीं किया मैंने। मैं ना ये सब डिलीट कर दो। लोकेशन क्लोज। अभी है ना, नया कुछ नहीं करेंगे हम सिर्फ वही डेटा उठाएंगे। बस क्या करना है, क्लिप डेटा लेना है। हाँ, क्या बोले सर?
अब यहाँ कुछ नहीं करने का, इधर जाने का ही नहीं, वहीं जाओ एक अभी मिनट ऊपर। मैंने क्यों जैस की इसमें चल जाओ। ओके, अच्छा प्रॉब्लम अभी आ रही है। प्रॉब्लम तुम्हारा और किसी में नहीं होता। है ना? अच्छे लैपटॉप लेना है। उसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं मैच हो रहेगा। ज्यादा हो रहा है और ये एक बात बोलूँ क्या, जितने टाइम आपको ये प्रॉब्लम आया ना, तो आप शायद भूलेंगे नहीं अब। नहीं अभी नहीं भूलेंगे सर। इसमें में दिल्ली का नहीं जाता। अब किसी ने भी पूछा आपको कि क्यू जैस में क्लासिफिकेशन कैसे करना है, तो बोलना भाई वो बहुत लंबी प्रोसेस है। ओके, तो अभी यहाँ से मैं एक मिनट हाँ, सिर्फ क्लिप डेटा ऐड करना है यहाँ। नहीं, यहाँ से उठा के नहीं डाल डालना है, नहीं उठा रहा के नहीं डालना है। हूँ। ये इसको डिलीट करता हो ना? नहीं नहीं, वो डिलीट नहीं करना है करने ना। दो क्या? नहीं नहीं, उसको रहने दो, हम आप कुछ नहीं करेंगे, बस सीधा उठा उठा के डालेंगे उसको उसमें। जस्ट ड्रैग एंड अभी ले लूँ क्या वो क्लिप डेटा? हाँ, क्लिप ये डेटा बैंड सेट से ही ले लूँ ना या ड्रॉप? हाँ, इसे ले, हाँ यही से यही से। एक्चुअली हम क्लिप वर्चुअल डेटा इसलिए ले रहे हैं कि एज अ बेस मैप उसका यूज कर रहे हैं। उसको बनानी है ना। ओके, अभी इसको ऐड करा। अभी कट करूँ? हाँ, कट करो वाला, ओके, वेवलेंथ सेलेक्ट कर लो इसे। करता हूँ। ओके, कट। कोलैप्स कर दो इसको। ओके, हाँ, क्रिएट वर्चुअल बैंड। यस यस। हाँ, अभी क्या अभी ना नहीं जो क्लियर बंद करा था ना। हाँ, अभी क्या करो, इसको बैंड एक काम करो, अभी ना रिफ्लेक्टेंस का डेटा ले तो लो। यहाँ से ही ले लूँ क्या? हाँ, सीधा बैंड से ही लेंगे, हम बैंड से इंपोर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने उसका रिफ्लेक्टेंस क्रिएट कर चुके हैं। ये रिमूव करो, एक मिनट, ये कैंसिल करो। ये नीचे नीचे कट ऑप्शन है, देखो नीचे का दिख रहा है ना, बैंड सेट 1 है ना, इसको कट कर दो सीधा। क्या हुआ, नेट क्या लग रही? हाँ, नेट गया था। हाँ, ओके, हाँ कट कर दो उसको। ओके, यस। ओके, अभी वापिस नहीं, उधर ही तो है वो। 2-3 आएंगे। ये रिफ्लेक्टेंस आया, ये दिख रहा है ना मेरे को। सेलेक्ट ऑल करो इसको, सिंगल बैंड लिस्ट। सेलेक्ट ऑल, ओके। नहीं, यहाँ पर दिखना नहीं चाहता है। ये नीचे वाला सेलेक्ट ऑल करो और उसको डिलीट मारना है हमें। ये कट ऑप्शन ये वाला? या नीचे, हाँ सेलेक्ट ऑल करो इसको, और वो कट कर दो उसको साइड से। यहाँ से क्या? ये बटन है देखो, हाँ उसके नीचे का नहीं, हाँ डिलीट रोज भी किया तो चलेगा, उसके नीचे का क्या रिसेट option है। हाँ, वो डिलीट कर दो, डिलीट रो। यस,
यस। ओके। अभी अभी वो बैंड सेट इंपोर्ट करो, फाइल ऊपर का छोड़ दो, ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा वो। ओपन फाइल। RT ऑपरेटर। हाँ, रिफ्लेक्टेंस का कंट्रोल ए कर दो उसको सीधा, ओपन। आ गया। तो ठीक है, random। वो अभी इसको ओके आ गया। हम बाकी कुछ नहीं करना है, वो बाय डिफ़ॉल्ट हमने उसका वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है उसको, तो क्लोज कर दो इसको। और जो वर्चुअल बैंड है ना उसको ऊपर ले लो टॉप में। अब नहीं दिखेगा। कैसे दिख रही है? अभी अभी इसको जूम कर लो थोड़ा। बाकी रामदास आप आएगी यहाँ तक? बाकी काम से करो। क्लिक पर है ना? और करो जूम, वाटर बॉडीज दिखना चाहिए पूरी। बस बस बस, थोड़ा नीचे नीचे ड्रैग कर लो उसको, छोटा कर दो, थोड़ा जूम आउट निकालो उसका, यानी आपको शेप फाइल डेवलप करते आना चाहिए, सिग्नेचर फाइल क्रिएट करते आना चाहिए। ऐसा? हाँ बस, हाँ नीचे कर लो उसे तो, ओके ठीक है, वेरी गुड। अभी क्या करो, ये SCP डग Yes, डग yes. दिख रहा है ना, इसे उठाओ वहाँ से, कितना? और इसको ये लेयर के साइड में रख दो उसको, उसके साथ अटैच कर, हाँ छोड़ दो उसको वहाँ। ठीक है, अभी ट्रेनिंग डेटा लो, ये इसको नीचे लो ना, आपका पूरा वाटर बॉडी दिखना चाहिए, सबसे पहले हम वही लेने वाले हैं अभी। सिर्फ वाटर बॉडी पूरा दिखना चाहिए, एक वाटर बॉडी जो है ना वो आधा ही दिख रहा है ना। और वो जो ये लेयर में जाओ, सब अनचेक कर दो अभी। ओनली वर्चुअल बैंड। हाँ ओके, हाँ नहीं 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 नहीं, इनको चेक रहने दो। क्लिप तो अनचेक करा है। हाँ ठीक है, वो नहीं भी रहा चल, बट पता नहीं, ठीक है ओके। हाँ, SCP डग के नीचे लेयर के बाजू में टैब है, देखो ओपन करो। हाँ, ट्रेनिंग इनपुट में नया ट्रेनिंग का एक फोल्डर से न्यू ऑप्शन दिख रहा है आपको। हाँ, सेलेक्ट क्रिएट न्यू ट्रेनिंग इनपुट। अभी डे 7 में जाओ। हाँ, यहाँ पर एक स्पेक्ट्रल सिग्नेचर या सिग्नेचर नाम का एक फोल्डर बनाओ, सिग्नेचर US लिख दो उसके आगे, ठीक है ओके नो प्रॉब्लम। ओपन करो उसमें। अभी ये सिग्नेचर का नाम दे दो US सिग्नेचर। सेव किया उसको। फोल्डर बना दो। अभी रीजन ऑफ Yes, इंटरेस्ट दिख रहा है यहाँ आपको? हाँ, उसके सामने उसके वाला लो। क्लिक करना पड़ेगा ना ROI पे पहला? नहीं, वो ऑलरेडी क्लिक है, वो विजिबल दिख रहा है ना। Okay. हाँ, क्लिक करो यहाँ, क्रिएट द रीजन ऑफ पॉलीगॉन। वाटर बॉडी सेलेक्ट करो पूरी तुम्हारे हिसाब से। कंप्लीट हो गया है। उसको लेफ्ट क्लिक करो ना, लेफ्ट क्लिक नहीं हुआ नहीं अभी वो। हुआ ना? हाँ ओके। अभी वो माइक्रो क्लास का नेम आप वहाँ पर क्या करो, वाटर बॉडीज करो, वाटर लिखो वहाँ पे, सिर्फ वाटर बॉडीज भी किया तो चलेगा। देन यू गो क्लास इंफॉर्मेशन एंड पुट द नेम ऑन देयर। तुम्हें जो ठीक लगे इसके बारे में नाम दे दो, बट वही नाम दो जो इजीली कोऑर्डिनेशन दोनों का सेम रहे। ओके। अभी ये माइक्रो क्लास आईडी और क्लास आईडी यहाँ दोनों जगह 1 1 है ना, तो ओके। और आगे ठीक है, क्रिएट सेव सिग्नेचर करो। यहाँ पे
हम्म ओके, हो गया शायद से, यहाँ पे आ गया। एक मिनट, द फॉलोइंग सिग्नेचर विल बी एग्जीक्यूटेड यूजिंग द मैक्सिमम लाइक्लीहुड। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ, नेक्स्ट वाटर बॉडीज पे जाओ। अभी कितना क्या करना है कि सभी वाटर बॉडीज का आपको इस तरह बनाते चलना है। बना ये अभी ऊपर वो हैंड जैसा दिख रहा है क्या आपको? हाँ, उसे क्लिक करो पैन मैप को, इसे जूम आउट निकालो इसका, और सेकंड वाटर बॉडी के पास जाओ और उसे जूम करो उसे। तो ये ठीक रहेगा। हाँ, जो आपको कंफर्ट फील होगा वो उस तरह आप एक बना लो, एक टेम्पररी। अभी क्या है, इट इज जस्ट, बट हो सके उतना बॉर्डर के बाहर ना जाए वो, क्योंकि वो नेबरहुड पिक्सल टू राइट पिक्सल रहेगा ना, तो अगर उसमें लैंड आ जाएगा तो वो उसको भी क्लासीफाई एज ए कंसिडर कर लेगा वाटर। ठीक है, अभी इसको हमें क्या करना है कि वेजिटेशन के लिए हम यहाँ से और ये सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एक्टिव रीजन ऑफ पॉइंट दिख रहा है आपको, ये एक यूज़ करके देखेंगे कि हाउ एग्जैक्टली इट इज़ वर्किंग। तो यूज़ करने के बाद इसे पॉइंट कर देंगे। यहाँ पे दिख रहा है सेम वैल्यू मैच करा रहा है यहाँ पे। अभी इसको रीजन भी आप बढ़ा सकते हैं। आई थिंक ये डिस्टेंस स्केल है ना, ये मैक्सिमम डिस्टेंस 100। देखा आपको? जैसे ही मैंने डिस्टेंस का वैल्यू चेंज किया है, इट इज़ कंसिडरिंग ऑल पॉलीगॉन। मुझे ज़रूरत नहीं है बार बार उसे सेलेक्ट करने की। ओके, आवाज़ आ रही है ना आपको? सर एक क्वेश्चन था। इनका नहीं आ रहा है किसकी? हाँ ये जो क्रॉप है अभी, हाँ। हाँ, हाउ कैन वी क्लासिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप? वो तो डिपेंड करता है कि आप ग्राउंड वेरिफिकेशन किए हो वहाँ पे। ट्रूथ भी जरूरी है सपोज। हाँ, ज़रूरी है क्लासिफिकेशन की, क्योंकि सुपरवाइज का मीनिंग ही वो है कि तुम ग्राउंड पे जा रहे हो, वहाँ का इंफॉर्मेशन ले रहे हो। अगर आपके पास बेस है ओके तो आप जैसे ही ना इसमें पार्ट में अपना की जीपीएस ट्रैकिंग जो रहेगा, तो आप वो ग्राउंड पे गए, वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, यू कैन राइट देयर हियर इज वेट क्रॉप, हाँ, हियर हाँ। इज मेज क्रॉप, हियर ड्रॉ दिस लैंग लॉट। ओके, क्लियर? ये जैसे आप स्केल बढ़ाओगे इसका, तो आप जैसे पॉइंट रखोगे ना, तो ये इस तरह कंसिडर कर लेगा कि सेम टाइप के पिक्सल मिले इसे। It depends upon the shape. It depends upon the pixel, I think. हाँ, अभी और सेकंड वन बना लेंगे। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 2 ऑप्शन कर देंगे, वेजिटेशन 2, और इस पे क्लिक करेंगे, बस इसे भी सेव कर देंगे। इसी तरह करो इतना तुम, ठीक है? हो जाएगा। ये किसका? सुधीर जी का स्क्रीन है ना, इसे जूम आउट करो ना इसको थोड़ा। वो वो डक किधर है, डक? हाँ, ओके। एक काम करो, इसका ये जो है ना, इसको फॉल्स कलर लो इसका। पाँच 4 3 करो उसको।
एंटर। सेम प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि क्लिप से डेटा उठा रहा है ना, तो उसे मिल नहीं रहा है। तो एक काम करो, ये RT अनचेक करो और वो क्लिप को चेक करो। एरर है, उसने उठा लिया वो RT से इंफॉर्मेशन। राइट क्लिक करो उसके ऊपर। ठीक है, डिलीट कर दो इसको। रिटर्न क्रिएट करो। आपके इधर एक प्रॉब्लम क्यों दे रहा है? हाँ, हो गया ना अभी। एरर देगा ऐसा लग रहा है मुझे। वर्चुअल बैंड को उठा के क्लिप के ऊपर रखो भला। बैंड क्वालिटी एसिस को अनचेक कर दो बस एक बार। उठा के वहाँ क्लिप, हाँ उसके ऊपर रख बस। अभी चेक करो। कोई और कॉम्बिनेशन लो। 6 6 7 5 ऐसा। 7 5 2 ठीक है, चलेगा। ओके, इंटर। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था इसमें, बार बार ये एरर क्यों दे रहे हैं? नहीं, इधर मत जाओ अभी, मेरे को देखने दो। राइट क्लिक करेंगे, उसको देखेंगे ना अपन कहाँ से उठा रहा है डेटा। नहीं, उसके नीचे वाला बैंड नंबर 11 है क्या जो सेलेक्ट है? Yes, yes. Otherwise, what your possibilities of हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, रिटर्न करेंगे सब, और सिग्नेचर वही उठाएंगे। ठीक है, वर्चुअल बैंड खाली अलग बनाएंगे। वर्चुअल बैंड है ना, फॉल्स कलर में बनाना। कॉम्बिनेशन क्या चाहिए? 5 4 उसका फॉल्स कलर का रहेगा 5 4 3। ये जो क्लिप डेट है वो वापस वैसे ही करूँ क्या? हाँ, पूरा रिटर्न वैसे ही करना है आपको। क्योंकि वो यूजर स्पेसिफिक तो हमें otherwise one thing is जो analysis चाहिए उनके टाइम पे जाके करते हैं, the बोलना पड़ेगा।
remotely हम करें तो एक्सेस लेके होता है ना स्पीड इज गुड हियर I told to keep on hold till that GLS sign. Finance team बोले right. After signing what you are signing that will only be accounted. So laptop हमारे खर्चे में है ना. If I buy Okay. before, you know, ओके अभी रिफ्लेक्टेंस डेटा ले लो यहाँ पे सेम टोटल ले लो क्या जो जो बैंड है हाँ हाँ सभी सभी कंट्रोल नहीं जरूरत नहीं होती है कंपनी के लिए जो अलग रहते हैं ये क्लिप डेटा डिलीट कर दें यहाँ से अंजन का हो गया ना सब आज तो हम लोग खाना खाने का आ गए इसके आगे कैसे आ गया अभी हमारा ये एससीपी डक में जाओ यहाँ पे नया बनाना है अभी वाटर बॉडी हाँ नया बनाना है बट ये इसका सिग्नेचर दिखा हाँ ना। कहाँ से रहा है ठीक है नया बनाओ प्रॉपर्टी नया बनाए बनाओ क्या सर ये क्या है वो वहाँ से डेटा उठा रहा है उसके स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी से जहाँ से हमने बना के पहले रखा है ना तो टेम्पररी उसकी मेमोरी में है बार बार तो ऐसा होना नहीं चाहिए था उसको पता नहीं ठीक है मैं क्लास चेंज करूँ क्या हाँ आप क्लास चेंज करो और ये वो देखना है ऐड ऑटोमेटिक करो सर्कल कैसे इसमें। आता है और स्टार्ट नहीं अभी ये यहाँ पर नया नया फाइल क्रिएट करो ये और उस सिग्नेचर के फोल्डर में उसको नाम बस अलग दो यूएस सिग्नेचर 2 कर दो उसको ठीक नहीं नहीं यूएस सिग्नेचर 2 है उसके अंदर ये रहेगा ठीक है तो चलेगा सेलेक्ट द रास्टर इज नॉट रास्टर ओके ये येलो कलर का बटन दिख रहा है क्या ऊपर ही कौन सा सर ये वाला हाँ ओके कट और येलो दिख रहा है देखो हेल्प के नीचे एक बटन है कौन सा ये नंबर हेल्प टूल बार में दिखेगा हेल्प के नीचे है ना हेल्प मेनू के ये वाला? नीचे येलो कलर का है ना हाँ डिसेलेक्ट करो इसको नहीं नहीं हुआ कुछ चलो ठीक है इसका एक क्लास इसको वेजिटेशन बोलो क्या हाँ वेजिटेशन और V1 दे दो इसको ओके अभी इसका सिग्नेचर क्रिएट करते हैं हाँ इसका सिग्नेचर No, no, but before that- सेव मत करो तो स्टेप निकालना पड़ेगा ना नहीं नहीं ऑटो सेव है तुमको पहले इधर सेलेक्ट करना पड़ेगा पॉलीगॉन अभी ये वाला ले लो क्या एक्टिव हाँ ले लो ये देखो बुलाया ना सर चल्लू मारने वाला ये एक काम करो ये पॉलीगॉन ले लो फिलहाल रीजन ऑफ ये वाला हाँ इसमें कुछ तो हो रहा है बैक एंड में
बैकएंड में वो क्या बोल रहा है कि सेलेक्ट द रास्टर, रास्टर इज इसका नॉट मीनिंग क्या है? लोडेड। यानी ये नीचे का जो सेलेक्टेड रास्टर है वो लोड नहीं हो रहा है उसका। हमने प्रोग्राम से फाइल उड़ाए थे, क्लोज किया था। सिग्नेचर वैल्यू वहां से हाँ क्यों ना। आ रही है इसकी? वो फोल्डर से सिग्नेचर उड़ा बोला उसका। ये वाला वो सिर्फ डिलीट पुराने करो वाला इसको। किधर है? हाँ ये कर दो इसको डिलीट। अभी इधर दिखना नहीं चाहिए ना सर वो। टेम्पररी मेमोरी कहाँ स्टोर कर रहा है पता नहीं, ये शायद टेम्पररी फाइल में होगा। चलो ठीक है, ये ना रिपीट करेंगे तुम्हारा, 1 मिनट आगे जाएंगे अपन थोड़ा। हाँ वो तो बिल्कुल बोलने वाले नहीं तुम। हमारा भाई काम हो गई है ट्रबल शूट करना है। हाँ हाँ सही है। ओके। ना वही बात कुछ नहीं। ठीक है स्किप कर दो उसको। छोड़ दो चलो। ओके चलो आगे जाते हैं। हाँ ये तुम्हारा है ना QGIS टेम्पररी बंद कर दो अब 2 मिनट के लिए, मेरा नहीं post करेगा। QGIS को भी गुस्सा आ रहा है तुम्हारा, क्या तो करूंगा ही नहीं भाई। हमारे जो भी रहते जो मिलता है उसका पूरा यूटिलाइज करते हैं। ओके यहाँ तक आ गए थे हम। ये दूसरा सिग्नेचर दूसरा कर लेंगे। हेलो हाँ मेरा स्क्रीन शेयर नहीं है ना। नहीं है। ठीक है, ये थर्ड नंबर का सिग्नेचर वैल्यू क्रिएट किया, सिग्नेचर। उसके बाद ये सिग्नेचर 5। ठीक है ये ले लिया हमने, सॉरी। चलो अभी इसको मर्ज कर लेंगे, मर्ज आउट मर्ज। hesitations, okay, like
ये से इसको कट कर दें। रोड नेटवर्क का एक चेक करेंगे, ये आएगा थर्ड में, पॉइंट नंबर थर्ड। उसके बाद क्लास आएगा 3 बिल्डअप एरिया। एरिया रोड रोड 1, अभी सिग्नेचर ले लेंगे इसको। तो इसने क्या कह रहा, बिल्ड एरिया में रोड के साथ सभी को ले लिया, तो ये इसका हमें यूज़ नहीं करना है। अभी विजिट करेंगे इसे। रोड ओके, रोड नंबर 3 जूम आउट निकालेंगे इसको। रोड 3 इसके बाद ऑप्शन लेंगे हम बिल्डअप एरिया। बिल्डअप एरिया पॉइंट ले लेंगे, सेलेक्ट। बिल्डिंग और इसके बाद आएगा यहाँ 4 सिग्नेचर। हम थोड़ा स्केल बढ़ा देंगे, इसका 2 कर देंगे। ओके 4 5
नेक्स्ट क्लास आइस स्नो बिल्डअप में ले लेगा. कल्टीवेटेड क्रॉप का एक ले लेंगे हम. ओके, ये हो गया हमारे अलग अलग कल्टीवेशन के क्रॉप. उसके बाद ओके, इसको हम नहीं करेंगे. वी आर कवर अप वेजिटेशन. नाउ वी कवर द ट्रीज और फॉरेस्ट ट्री. Class number 6 tree. ठीक है, हम इतने ही क्लास लेंगे अभी इसके अंदर और उसके बाद उसे क्लासिफाइड करेंगे. तो पहले हम क्या करेंगे इसको, वी आर जस्ट मर्ज द ऑल सेम फाइल. लुक हियर द बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2, 1 2 3. एकदम डन था. 1 मिनट. हाँ, आवाज आ रही है? आवाज. हाँ, अभी यहाँ पर क्या किया हमने कि वाटर बॉडीज, वेजिटेशन, ट्रीज, बिल्डअप एरिया. तो हम इसको रीनेम भी कर सकते हैं यहाँ पे. जैसे बिल्डअप एरिया 4 दिखा रहा है तो नहीं चाहिए हमें, हम इसे हटा देंगे. नहीं, डिपेंड करता है आपको क्या डालना है, एज योर चॉइस. और ये लो वाटर वेजिटेशन डालेंगे इसे. और सॉइल उसके बाद ये रोड नेटवर्क. हाँ, बैरल लैंड का भी करेंगे Soil, हाँ. फीचर. रोड हो गए. अभी एक बैरल लैंड का करेंगे. बैरल लैंड का
मैरीलैंड के लिए हमें सिग्नेचर नंबर 5 हो गया, सिग्नेचर नंबर 5 6 या मैरीलैंड सर 7 लेनी पड़ेगी शायद। लैंड, हाँ 1 2 3 4 5 6 ही लेना पड़ेगा। 6 वाले ट्री है शायद सर। लैंड 1, हाँ 7, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे स्केल इस पे डेटा को ले लेंगे, इसका थोड़ा सा बढ़ा देंगे, रेक्टर स्केल 2 कर देंगे इसको, तो वी आर कवर ऑलमोस्ट। इसे लेके हम इसे 5 तक बढ़ा देंगे। ओके, लैंड 1 सेव, उसके बाद लैंड 2 7 8 7 सेव, सेव, ओके। तीनों को अभी मर्ज कर देना है हमको। ओके मर्ज, मर्ज करने के बाद इन तीनों को हटा देंगे हम। ओके, यहाँ तक समझ में आया? अभी हम क्या करेंगे, इस यस यस आ रहा है। आवाज आ रहा है ना सुधीर जी, मैडम? हाँ, अभी यहाँ पर आपको ये सभी सिग्नेचर सेलेक्ट करना है एक बार, ऐसे इस तरह सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो उसको, ये जो नीचे ऐड हाईलाइट सिग्नेचर स्पेक्ट्रल सिग्नेचर प्लॉट, यहाँ पे आपको उसका प्लॉट दिख के आएगा, यू कैन सी हियर, और आपको यहाँ पे उसका स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट भी दिख के आएगा। क्लिक करता हूँ। इधर ये प्लॉट दिख रहा है। क्लिक करो। ठीक है, नहीं ये स्पेक्ट्रल सिग्नेचर है। अभी प्रॉब्लम इज, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि सिस्टम ने इट विल बी कंसिडरिंग, रोहित ऑलरेडी डिस्कस सिस्टम आर अंडरस्टैंड एंड सेल्फ डिसाइडेड टू गिव द कलर नेम, कलर कोडिंग, ऑल दिस। सो हम क्या करेंगे, इसको कलर कोड चेंज करेंगे एज आवर रिक्वायरमेंट। यहाँ पर जो कलर Yes. कोड दिख रहा है कि आपको ये हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। जैसे अभी हमने किस पे सेलेक्ट किया, वेजिटेशन, वेजिटेशन कौन से कलर का होना चाहिए, ग्रीन, तो डार्क ग्रीन कर देंगे इसको। ओके, तो ये जो Yes. स्पेक्ट्रल सिग्नेचर दिख रहा है आपको यहाँ पे, इट इज अ चेंज। तो हाई पीक इट विल बी कंसिडरिंग as a signature value Yes. of 0. Healthy vegetations and unhealthy vegetations. basically Okay. that y-axis Same process. represents the reflectance value, right? Okay, right. या तो अभी आपने पूछा था शायद 2 दिन या 3 दिन पहले कि स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कैसे निकालना है। अभी एक पिक्सल है, जैसे लिस्ट्री का स्पेक्ट्रल पिक्सल लेंगे हम, और उस पिक्सल का एक पिक्सल में हमने क्या करा, जैसे क्लिक किया उसका कंटेंट निकाला, वो पिक्सल की वैल्यू निकाला, तो वहाँ से उसमें 2 बॉडीज़ है, एक वाटर बॉडी हाफ पिक्सल में ही और आधे पिक्सल में आ रहा है आपका क्रॉप। तो यू कंसिडरिंग, आप इस सिग्नेचर से कंसिडर कर सकते हो कि उस पिक्सल में एग्जैक्टली कौन सी वैल्यू है। समझ में आया ना? एक्स और वाई जैसी पिक्सल 23 मीटर बाय 23 मीटर का जो पिक्सल है,
तो उसका जब आप इस तरह शेप फाइल क्रिएट करोगे तो वो टाइम में आपको स्पेक्ट्रल ओके ओके, तो डिपेंड्स ऑन द रिफ्लेक्टेंस वैल्यू हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो हाँ पिक्सल में वाटर कौन सा है और क्रॉप कौन सा है। राइट। हाँ हाँ, ये स्पेक्ट्रल सिग्नेचर पे कंसिडर, वेवलेंथ पे आप कंसिडर कर सकते हो कि यहाँ वैल्यू कौन सी आ रही है। ओके ओके, उसके बाद ये प्लॉट सिग्नेचर है, यहाँ पर आपको जैसे उसकी वैल्यू वेजिटेशन निकलेगा। तो और एक दूसरा ग्राफ है, इसे क्लोज करता हूँ मैं। ये ऐड हाईलाइट आइटम्स स्कैटर प्लॉट, अभी इसको ओके, एक्सपोर्ट होता है क्या सेव ये? करते आता है। हाँ एक्सपोर्ट होता है, Yes. एक्सपोर्ट किया जाता है। ये जो ऑप्शन दिख रहा है कि आपको यहाँ सेव द प्लॉट, जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ, डिपेंड ऑन एज योर चॉइस, आप उसे ये कर सकते हैं। ओके, तो यार कैंसिल। उसके बाद ये स्कैटर प्लॉट दिख रहा है ना, बेटा हमारे QGIS में भी कोई प्रॉब्लम आती क्या? हेलो, नेट गेलं का रे? नेट न लय अवघड लावलंय विद्यापीठाचं, किती नेट वाचवायचं यांना मला हेच कळत नाही आहे। सर गेले काय रे इथं? हाँ, आवाज आ रही है क्या अभी? हाँ यस सर। हेलो, हाँ, तो इसे एक्सपोर्ट किया जा सकता है। इसके अलग अलग टाइप के ग्राफ है, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पर ये बहुत सारे ऑप्शन है, यू कैन चूज एंड यूज इट। रीजन ऑफ इंटरेस्ट का भी आप आर यू श्योर यू वांट टू थ्रेशोल्ड सेवरल स्पेक्ट्रल सिग्नेचर तो निकाल सकते हैं आप इसके हिसाब से। ठीक है, इसे कट करेंगे। 1.8 नंबर वगैरह। हाँ, अभी ये स्कैटर प्लॉट का एक देख लेंगे इसके अंदर। ये जो स्कैटर प्लॉट है ना, यू कैन इधर का है, इसको बहुत टाइम लग रहा है शायद वेट कर। क्योंकि हमने क्या करा है, बहुत सारा डेटा सेलेक्ट किया है ना, बहुत सारे क्लासेस क्रिएट किए हैं, तो इट इज़ रिक्वायर्ड टाइम। तो अभी ये देखो एक ग्राफ है, अब वाटर बॉडीज है, वाटर बॉडीज ओशन कलर हम ले लेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख के आएगा कि वाटर बॉडीज़ का लेवल कितना है। ओके, सो आप इसे भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसको। क्या बोल रहे हैं मैम? आपका आवाज बैंड 1 एंड बैंड 2 it should be reflectance and wavelength, right? हाँ, रिफ्लेक्टेंस। ठीक है, इसका भी सेम आप डेटा कलेक्शन कर सकते हो। यू कैन एक्स और वाई पोजीशन। No, why it is band 1 and band 2? Actually, two band here just calling the band 1 and band 2. Actually, not mention here. All band information we gather. पता नहीं ये दो बैंड ही क्यों, ये बैंड नहीं होना चाहिए था यहाँ पे। होगा बिहाइंड समथिंग रीजन, मैंने नहीं देखा अभी तक ये कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ इसका।
शायद ऑप्शन हो गया हमारे पास बैंड मोर बैंड कुछ होगा इसमें रैंडम ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए होगा जैसे रैंड यहाँ पर ये और भी ऑप्शन है बैंड 1 बैंड 2 भी आई थिंक बदलते सेम इमेज ओशन ठीक है इसे कट करता हूँ अभी यू कैन डू प्रैक्टिकल ऑन इसके बाद हम क्या करेंगे अभी इसे सीधा क्लासिफिकेशन के लिए अप्रोच करेंगे ये होगा हमारा स्पेक्ट्रल सिग्नेचर का इंफॉर्मेशन ठीक है इसके बाद ये इसे थोड़ा सा हटा देता हूँ उठा के इधर रख दूँगा जाते हैं हम क्लासिफिकेशन पार्ट में तो यहाँ पर क्या ऑप्शन है हमारे पास एल्गोरिदम अलग अलग टाइप के तो अब मैं क्या करूँगा इसका प्रीव्यू देखूँगा कि कौन सा एल्गोरिदम का रिजल्ट किस तरह आ रहा है ठीक है तो ये ऑप्शन है आपके पास ये प्रीव्यू ऑप्शन सेलेक्ट करना है और इस तरह मैं क्लिक करूँगा ये मैक्सिमम डिस्टेंस का जो रिजल्ट है हमें इस तरह मिलेगा 1 मिनट थोड़ा होना चाहिए ठीक है मैक्सिमम डिस्टेंस का रिजल्ट हमें इस तरह मिल रहा है बट हम क्या करेंगे इसको और एक दूसरा एल्गोरिदम यूज़ करके देखेंगे इसके ऊपर मैक्सिमम लाइक्लीहुड और इसे अप्लाई करेंगे तो इसमें थोड़ा सा रिजल्ट हमको उससे अच्छा मिल रहा है अभी जो वाटर बॉडीज़ का पिंक कलर है उसके बाद ग्रीन वेजिटेशन है इसका हमें साइन कलर दिख रहा है तो वी कैन आल्सो चेंज एज आवर चॉइस यहाँ पर प्रीव्यू का एक टैब दिख रहा है आपको प्रीव्यू में सब उसकी स्केल वैल्यू आई है उसका स्पेक्ट्रल एंगल मैपर का देखेंगे ठीक है तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड का हमें इससे इन सब में सबसे अच्छा रिजल्ट दिख रहा है हम क्या करेंगे उसके साथ जाएंगे अभी थ्रेशोल्ड हम बाद में देखेंगे इसको ओके एंड जस्ट यहाँ एल्गोरिदम सेलेक्ट करने के बाद जस्ट आपको क्लिक करना है तो पूछेगा आपको क्या आपको जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड का एल्गोरिदम ये क्लासिफिकेशन रिजल्ट है कहाँ स्टोर करना है तो यहाँ पे हम एक फोल्डर बना लेंगे क्लासिफिकेशन MLC सेव अगर हम लैंडसैट का पूरा टाइल के ऊपर अगर एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं तो लगभग 30 मिनट रिक्वायर्ड होता है उसको क्लासिफाइड करने के लिए हॅलो ते कसं परत एकदा सांग. हॅलो हा येतोय का? आवाज येत आहे ना क्वेश्चन होता आवाज मला समजलं नाही हाँ ये देखो यहाँ मुझे एक चीज क्या समझी नहीं कि जैसे हमने
अल्गोरिदम सिलेक्ट किया, उसके बाद आप टाइल के ऊपर क्लिक कर रहे हो ना शायद से? नहीं नहीं, वो तो हमने प्रीव्यू देखने के लिए किया था। ये प्रीव्यू क्या है कि एक टेम्पररी एक मिरर है, Okay, वी but कैन how ऑर्गेनाइज we इट can लाइक say दिस। that that maximum likelihood is good than the minimum one? आप ही देख लेंगे ना, हम सभी का एक सेपरेट सेपरेट एल्गोरिदम Okay. डिज़ाइन करेंगे। जैसे ये एक होगा, इसे हटा देंगे, फिर एक सेकंड एल्गोरिदम निकालेंगे मिनिमम डिस्टेंस का। ये प्रीव्यू भी हटा, ये प्रीव्यू दिख रहा है कि आपको? ये देखो, ये हाँ दिख रहा स्क्रीन है के सर, ऊपर ये। दिख रहा हाँ ये प्रीव्यू, हाँ ये प्रीव्यू हटा दिया ना तो ये हट जाएगा। तो जस्ट वी आर कंसिडरिंग इट इज़ है। गुड Okay, और नॉट गुड इन स्मॉल एरिया। हाँ, इसका हमने अगर ये एरिया बढ़ा दिया तो ये बड़ा भी दिखाएगा ठीक है। इस तरह। ठीक है, तो हम ये प्रीव्यू हटा देंगे। वी गो विद द सेकंड एल्गोरिदम, मिनिमम डिस्टेंस, एंड रन। वो तो टीफ से होता है। ये क्लासिफाइड होने तक सर ऑनलाइन आ रहे हैं इधर, तो 2 मिनट के लिए कैमरा ऑन कर लो सब। एक मिनट। तो अभी ये क्लासिफिकेशन ऐसा मैक्सिमम डिस्टेंस क्लासिफिकेशन का ये रिज़ल्ट आया। उसके बाद इसे हम चेक करके ये देखेंगे MLC। तो अलग अलग रिज़ल्ट उनका है, डिपेंड करता है उनका रिज़ल्ट टू एल्गोरिदम एक्यूरेसी। अब आपने पूछा था कि दोनों का एक्यूरेसी कैसे समझ में आएगी, इसका अच्छा है उसका अच्छा है। वो प्रीव्यू पे वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि जस्ट प्रिडिक्शन इट इज़ गुड, बट हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन का एक्यूरेसी निकालेंगे। जैसे अभी क्या है, MLC और मैक्सिमम डिस्टेंस क्लासिफिकेशन का एक्यूरेसी निकालेंगे इसका यहाँ पे। तो यहाँ पर आने के बाद पोस्ट प्रोसेसिंग एक ऑप्शन होता है। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी, ओके, एक्यूरेसी में हम दोनों इसको मैक्सिमम लाइक्लीहुड क्लासिफिकेशन और मैक्सिमम डिस्टेंस क्लासिफिकेशन का कंपैरिजन करेंगे। ओके, इसे रन करता हूँ मैं। ये पूछेगा कंपैरिजन एक्यूरेसी असेसमेंट। ओके, तो ये हमें एक्यूरेसी असेसमेंट का एक रिपोर्ट मिलता है। तो वी कैन जस्ट चेक द एरर मैट्रिक्स, उसका क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, रेफरेंस, एरिया बेस्ड एरर मैट्रिक्स। फिर उसका हमें 95% ऑफ CI एरिया रिपोर्ट मिलता है। कप्पा हॉट उसका रिजल्ट यहाँ पर मिलता है। तो एज योर रिक्वायरमेंट यू कैन जस्ट क्लासीफाइड द एक्यूरेसी, और आप देख सकते हैं उसको। उसके बाद बहुत सारे आपसे लैंड कवर चेंजेस, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, इसमें हम MLC का रिपोर्ट देख लेंगे। ठीक
ठीक है, ये उसका रिपोर्ट एरिया रिजल्ट आ रहा है आपको। बाकी चीज़ें आप अप्लाई करो, यू कैन डू। मैं अभी इसके ऊपर एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा, सो यू कैन ईजीली उसको क्लासीफाइड कर पाओगे। ये एक्यूरेसी असेसमेंट का रिजल्ट है हमारा, दोनों का मिला के। तो इसमें अब जैसे वाटर बॉडी साइन है, तो हम इसे अपने चॉइस के हिसाब से मैक्सिमम लाइक्लीहुड का देखेंगे। अभी हम इसको चेंज कर देंगे, साइन कलर को ब्लू कलर। तो इस तरह हमको रिजल्ट मिलेगा इसका। जिस तरह हमने क्लासिफाइड क्रॉप किया है, तो उसके हिसाब से इसको रिजल्ट नहीं आया है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है क्या, ग्रीन वेजिटेशंस, ये अलग अलग बॉडीज़ में दिखा रहा है वो। ग्रीन वेजिटेशन कौन सा है, वेजिटेशन सी, तो उसने ये दिखाया नहीं। उसने क्या किया है, सब पिक्सल ले लिया है, और जब हमने क्रॉप अनक्लासिफाइड बैंड के लिए उसने ये ओवरलैप जो क्लास हुए, तो उसके लिए उसने मैक्सिमम जगह ऑक्युपाइड कर लिया है। तो हम इसे अच्छी तरह फुल जूम आउट करके पॉलीगॉन यूज़ करके हम सिग्नेचर वैल्यू क्रिएट कर अगर करते हैं, तो वी गॉट द बेटर रिजल्ट एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, यहाँ पर हमने सुपरवाइज क्लासिफिकेशन के सभी पार्ट अभी कवर अप कर दिया है। ये प्रैक्टिकल करो, और अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन का मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा, तो यू कैन फॉलो दैट। मैं सभी चीज़ों का वीडियो शेयर करूंगा, और एक जो क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन रहेगा नेक्स्ट वीक में, उस दिन हम कवर अप करेंगे क्या, ये भी मैं एक ओवरऑली एक शॉर्ट एक्सप्लेन कर दूंगा अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन का। Make one as a WhatsApp group, so Okay. we can communicate with that group whatever the queries we have when we are doing the practical. Okay. I think we are create the Telegram group. Sudhir ji, you can create an add also. Hello. Okay. हाँ, मैंने बोला Okay. क्रिएट करो टेली। अभी हाँ, ओके। अच्छा अच्छा क्लासिफिकेशन
बहुत दिक्कत है, अभी भूल नहीं पाएंगे, नहीं बोलेंगे। क्लासिफिकेशन कभी नहीं भूलेंगे तुम लोग। तो एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे अभी। एक मिनट है। अरे ये रोहित गुप्ता कॅमेरा ऑफ झाला का तुझा? ओके। और 10-15 मिनट चलेगा अपना क्लास, आधा घंटा और। तो सर से कोई बात गीत करना हो तो कर लो। और जो रिमेनिंग पार्ट है अपने मैम, वो शायद नेक्स्ट वीक या इन बिटवीन कभी रखेंगे क्लास। ओके। क्यूजी अपना जीपीएस ट्रैकर 2-3 पॉइंट रहा है आपका सिलेबस कवर अप करने के लिए। तो जैसे और डाउट सेशन टाइप में जो होगा उसमें अपन कवर कर सकते हैं उसको, डाउट सेशन या और कुछ क्वेरीज वगैरह उसके हिसाब से। या तो एक सेशन और रेगुलर इसमें ही जाने देंगे बाद में, एक डेट डिसाइड करके। आप क्या करो, यू कैन डू द प्रैक्टिकल जितना भी आपका हुआ है, उसके बाद इन बिटवीन जो गैप क्वेश्चनरीज आंसर क्वेश्चनरीज का एक सेशन रखेंगे, वो दिन हम इसे कवर अप करेंगे। हाँ आ रहे सर। आ रही है आवाज आ रही? हाँ तो क्या बोल रहे हैं कि अभी जो कुछ बचा है 2-3 पॉइंट बचे हैं ना, वो और ये पहला जो हुआ है उसका प्रैक्टिस भी आप लोग कर सकते हैं ये लोग, और कुछ क्वेश्चंस कुछ क्वेरी है वो भी उसमें क्लियर करेंगे, और ये बचे वाले 2-3 पॉइंट एक सेशन में ले लेंगे वो। तो just 1 or 2 days so that they can do practice. हाँ हाँ हाँ, नेक्स्ट वीक Sure. next week we Fine. will make a plan. Also, we can send the recordings. Then that will also help. Yeah, I am sending you all recordings and screenshot and notes also. और ये बाकी ये इसका पेमेंट का जो है मैं कंफर्म करके आपको करता हूँ मैडम, ये और आपने वो समझो आईडी शेयर किया तो इजी रहेगा और ट्रेस आउट करने के। सर एक्चुअली मेरे मेल में आ जाएंगे, आई विल फॉरवर्ड इट टू योर ईमेल। ठीक है कोई दिक्कत हाँ चलेगा, आराम से। इन द मीन टाइम आई विल गेट इट चेक एंड कम्युनिकेट टू यू। Ma'am, we are send you feedback form. You will be fill up and send back. Oh yeah. सगळ्यांचंच घ्या ना। हाँ, सगळ्यांचं। Yes. So अभी कंटिन्यू करते हैं हमारा क्लासिफिकेशन। आता हूँ मैडम। ओके बाय सर, थैंक यू, बाय बाय। हाँ दी हाँ काही विषय नाही ना, आता येते झालंच समजा, बंद केलं म्यूट केलंय मी ते। कशाचं? हां तुमचं तुम्ही बिझी वाटते। चालेल।
यस नाही थोडं बाकी आहे लास्ट सेशन आहे म्हणजे लेकिन 10 मिनटं काय 10 मिनटं चालेल आणखी हो का हो ठीक आहे चालेल मला थांबायची बोललो मला कन्क्लूड कर दो तुम बाकी मैं तो आधे घंटे बाद काय कन्फ्युज आता झालंच नाही झालं. बोलून झालं हाँ चलेगा काय असलं तर कोणा म्हणून बघा बोललो ना ते ओके जर फक्त कधी जास्त वाटतं तसं करतो उद्या मी घेऊन येईल करून तुला ते हां उद्या उद्या मला लागणार आहे उद्या 29 पर्यंत 3-4 तारखेला येणार आहे हां का 27-28 4 दिवस मला लागेल का एकदा स्क्रीनशॉट घेऊन टाक बस टेलीग्राम पे और सबको ऐड कर लो इसके लिए ओके ओके ठीक है तो चलो एक बार ऑनलाइन आ जाओ और फिर मैं अभी क्लास ओवर अप कर रहा हूँ नहीं नहीं इकडे येऊन जाते मेरे को सुधीर की मोबाइल तो बहुत अच्छा लग रहा है तो चलो एक आप टेलीग्राम ग्रुप बनाइए और उसके ऊपर मैं ये सभी ट्यूटोरियल्स के वीडियोस अपलोड कर दूंगा लिंक और जो रिमेनिंग पार्ट है उसका भी उसका सबसे पहले करूँगा यानी भी आपको इजी होगा क्या नेक्स्ट पॉइंट कवर अप करने के लिए और नेक्स्ट वीक में एक क्वेश्चन आंसर डे रखेंगे यानी आपका कोई क्यूरी होगा तो विल बी सॉल्व ठीक है यस सर सो चलो अभी अभिजीत जी किधर है मास्क लगाया मास्क निकाला गायब इस पे भी चलो बारिश के बारिश इतना नहीं है हाँ? बारिश कैसी हुई उधर इतना नहीं कि औरंगाबाद में तो बहुत बारिश हुई Yesterday night we got very so बाकी ठीक है इधर हो रहे बारिश तो बहुत था रात में हाँ रात में तो बहुत बारिश हुआ था चलो अच्छा है शुरुआत तो हुआ लग नहीं रहा था ये साल बारिश होगी बारिश हो थैंक यू बाय बाय चलो मैम किया सी यू बाय बाय थैंक यू